Okay, the recording is now again started. Thank you so much for the patience. Start करते हैं guys. Okay, चलो. Asian Paints 1H time frame. दो बात मैं बता चुका हूँ 1H and 1D. Usually this will be the time frame you will be looking for things at. Okay. Now what I can say is some sort of a good drop again, a bit of consolidation plus some sort of retracement profit booking again, a dead drop again. What my mind says, it's right now can be a Wyckoff, could be an Wyckoff. Okay. But everything happens, everything makes sense. If this dead drop coming to an end, the exhaustive mood, जो ये exhaustion आके यहाँ खत्म हुआ है, sorry, जो exhaustion यहाँ आके खत्म हुआ है, this should happen at some OD तो मजा आएगा. तो everything should start making sense. I'll have to just check when I find a drop based drop, is it ending at some sort of OD or not? That's the first thing my mind should calculate and look forward into a chart. हो जा भाई. Is it or is it not? Can I check some sort of consolidation, breakout, last down move before the up move, and OD? Is my price coming down with rally based, drop based drop, exhausting its move, coming down to an OD, giving me an idea that I can look for some Wyckoff accumulations now? If it is yes, great. What it is doing next, as soon as it touches the OD, it will give you one impulse reaction up, which currently it's on 1H, 15 minutes, 5 minutes, you can trade this, right? अगर बहुत अभी से दिखाना चाहूँ आपको तो 15 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको ये लिक्विडिटी हंट, यहाँ पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा. ये जो प्राइस नीचे जा रही है इस रिट्रेसमेंट पे आकर के, चाहे फिर आप इसको इस एंगल से लो, लाइक पिन बार एंड एंगल्फिंग पे लो, डिस्काउंट में आपको ट्रेड मिल जाएगा एंड यू कैन गो टू अप. द फर्स्ट लिटिल बेसिक सप्लाई जहां पे आपको ट्रेड छोड़ना है, स्कैल्प. ठीक है मिस्टर पटेल, काइंडली चेक इट वंस अगेन. सुशील और अदर देन क्लियर है ना? चलो क्लियर है. ठीक है, तो इतना सा बात समझ आ गई. ये 5 मिनट 15 मिनट में आपको तब भी दिख जाएगा, राइट? एज सुन एज यू कम डाउन टू ओडी. एक और टिप ट्रिक कुछ भी बोल बता देता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि दैट यू नीड टू बिल्ड अप योर सेट ऑफ टाइम फ्रेम्स. मैंने मैसेज भी डाला था चैनल में, ऑलवेज बिल्ड अप योर सेट ऑफ टाइम फ्रेम, कि मेरे लिए ये एचटीएफ है, ये इंटरमीडिएट एचटीएफ है और ये एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है. So let's say for forex, I'm mostly into forex now these days and these months in fact. So there I have my 4H 15 minutes execution and such concept. Indian market में combo आपको बता देता हूँ 1H and 5 minutes. People can say 1H 15 minutes 1 minute. Personally बता रहा हूँ 1H and 5 minutes का combo बहुत अच्छा है HTF और LTF का. So if you are looking for some sort of good candle formation और स्पेशली इस कॉन्सेप्ट के साथ में, कंसोलिडेशन बॉक्स कॉन्सेप्ट के साथ में, 1H के बाद आप 5 मिनट्स पे एग्जीक्यूशन करो, यू विल हैव गुड रिजल्ट. आपको बहुत क्लैरिटी से मिलेगा. बट अगेन, अगर आपकी हैबिट बैंक निफ्टी 1 मिनट की है तो 1 मिनट 5 मिनट से आपको बहुत बहुत भारी लगने वाला है. बट एनीवे, what I said was some sort of level, some sort of little supply जहां पर कहीं ना कहीं से रिट्रेस बैक करना चालू करेगा. All I have to make sure that am I getting some sort of rejections once again from some particular levels or not. As soon as I'm getting some rejections, I ensure that okay, this can be my AR. This was automatic rally जो ऊपर गई, उसके बाद उसने फिर से उस पर रिजेक्शन लिया, मुझे AR मेरा इंश्योर हो जाता है. जैसे ही मेरा AR इंश्योर होता है गाइज, व्हाट आई सेड, यू हैव टू मार्क 2 लाइंस. आपको एक रेंज डेवलप कर देनी है. अब मैं मान के चल रहा हूँ सर गाइज, यहां से पीछे का डेटा, आगे का डेटा नहीं है, टुवर्ड्स द राइट वी डोंट हैव, बिकॉज अभी तक काम इतना ही हुआ है. ये जो लाइन आप मार्क करोगे ना, ये बहुत रिटेल कॉन्सेप्ट से मार्क करना. इट शुड हैव मैक्सिमम टचेस. मैं यहां से राइट की बात ही नहीं कर रहा हूं. सिर्फ इतने से पोर्शन के अंदर, सिर्फ इतने से पोर्शन में आपको जहां बेटर मिल रहा है कि लाइन जहां पे बेटर मल्टीपल टचेस दे रही है, लुक फॉर दैट. So I have this point touch, this point touch, this one, this one, this one. So with that, I came to a conclusion that I can mark my AR level on this point. ठीक है, नीचे इधर आते हैं तब भी पिन बार का हेड हमें पता है यूजुअली एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होता है. आप एसएमसी फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में देख पा रहे हो, मैंने कई बार बात की है. पिन बार फॉलोड बाय एंगल्फिंग, रिट्रेस टू पिन बार हेड, एंट्री एसएल बिलो पिन बार एंड अप अगेन. तो पिन बार का हेड इज ऑलवेज अ गुड पॉइंट फॉर अस टू मार्क ए लाइन. तो यहां तक भी लाइक इवन लेफ्ट टू द येलो लाइन आई एम हैविंग फ्यू टचेस है. अब
Once you have this line, you will always find this some resonation and with the further price down there. Okay, तो मैंने आपको इस भरोसे पे नहीं रखा है कि ये हो रहा है तो मैं कर रहा हूं, बट अगर यहां तक की पिक्चर पे भी मैं मल्टीपल टचेस देखूं, so this is where I'm getting the point. So far my now when I have a range, all I have to do is to buy from here, sell from here, again on HTF, on 5 minutes, on through SMC knowledge. वही करना है, liquidity hand, change of character, retrace back to discount and up, यही करना है 5 मिनट पे. But you have two very prominent and important level to look for trades tomorrow now, right? So far यही है. अभी तक मैंने जो बात किया है, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, एग्जॉस्टिव मूड, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है, एग्जॉस्ट हो गई कैंडल्स, अपमूव आने लगा. कहां से अपमूव आ रहा है? लैंडिंग कहां हो रही है? ओडी पे लैंडिंग हो रही है. इमीडिएट अपमूव आ गया. इमीडिएट अपमूव 5 मिनट्स पे हमने ट्रेड कर लिया. वो भी आपको दिखा दिया मैंने, लिक्विडिटी हैंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पिन बार के हेड पे एंट्री मिल रही है, ऊपर तक जा रहा है. अगेन वहां से रिट्रेसमेंट, रिजेक्शन आ रहे हैं, 2 रिजेक्शन आते हैं, आपको समझ आ गया कि आपको एआर लेवल मिल रहा है. नीचे से मल्टीपल टचेस से आपने दूसरी लाइन मार्क कर ली. दैट इज इट. अभी के लिए ये 2 लाइंस आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स देंगी एट एनी पॉइंट ऑफ डे. What I meant to say is because now I know that this is the level. If the day is ending here, if my price is at this level, I can be pretty much sure that I will have good trades tomorrow. अब चाहे आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, मैंने ये 1H पे मार्क किया, बट इफ यू स्टिल वॉच इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम्स, mark that line and you will have better trades. So if the ending move is exactly onto this level, I may look for some retracements there, right? बहुत रिटेल कॉन्सेप्ट से है. This lines are gonna give you very good places to initiate the trades or to look for the trades. Treat it as your stock screener. Treat this as your stock screener. Now you don't need any NR7, any NR, और कौन से होते हैं 5, any NR11 और एनी चार्टिंग लिंक. कोई सी चार्टिंग के किसी लिंक की जरूरत नहीं है. फर्दर आगे चलते हैं. Now the people must be knowing about Wyckoff. What we look for is now the ST will happen, the price will again move back to AR, will break the AR, will come here for spring once again, blah blah blah. ठीक है, सब कुछ वैलिड है. तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम इसको, इस एक्शन को स्प्रिंग एक्शन बोलेंगे, जस्ट टू हिट डाउन द स्टॉप लॉसेस एंड टेक द लिक्विडिटी, प्राइस गोज अप बैक अगेन, वैलिड है. एडवांस वाइकॉफ में पता चलेगा कि ये वाइकॉफ फॉर्मेशन कब टूट जाते हैं, जो मैंने आपको आइडिया दे दिया, दैट इट्स नॉट ऑलवेज द स्कीमेटिक इज एंडेड. It's not always the schematics always completes its every level and gives you the final up move. Not happens most of the time, or not most of the time, but कई बार वो ब्रेकआउट हो जाती हैं. फिलहाल के लिए मैं सिर्फ प्राइस को एनालिसिस कर रहा हूं. अगर व्हाट आई एम फाइंडिंग है दैट आफ्टर दिस स्प्रिंग एक्शन, आफ्टर दिस द पर्टिकुलर एक्शन ओनली मेंट टू टेक द लिक्विडिटी, इंपल्स मूव, मुझे इतना तो पता ही है ना, my impulse move down, impulse move up, taking the liquidity, right? What I'm having is again some sort of consolidation and demand formation, right? If this my demand, अब आप लेफ्ट पार्ट को भूल जाओ, मैं आगे की वाइकॉफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट पार्ट को भूल जाओ. अगेन मेकिंग ए येलो डाउन लाइन हेयर और दिस है. If I'm having some sort of BPA area which got broken out, I can again pull off my last down candle from this as my OD. Price came back here, give my impulse reaction, and in comparison to this fall, in comparison to this down, retrace and down, this is relatively a direct downfall to you. And if it is a direct downfall, your mind now asks for a VCP pattern. कि अगर मैं डेड ड्रॉप कर रहा हूं, एग्जॉशन लेके आ रहा हूं किसी ओडी की लेवल पर, तो इट शुड बी. तो अब ये एआर लेवल तो आपको फिर भी मिल जाएगा. ये ट्रीट तो आप फिर भी अगर एसएमसी से पिकअप करना चाहोगे तो कर सकते हो. एज सुन एज यू सी दिस, दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी एनगल्फिंग. ये एनगल्फिंग होना जरूरी नहीं है, ये इनसाइड कैंडल भी बना सकता है, मतलब इस लेवल के नीचे तक भी आपका प्रीवियस जो ये अपसाइड फॉल है रुक सकता है. बट नाउ योर माइंड सेज आस्क फॉर वीसीपी, and since it's asking for VCP, all you have to look for is for this, the three arcs. The first one relatively smaller, second one relatively smaller, the third one. Third के swing पे high पे breakout and retest. As soon as it breaks out, retest, entry है SL below the swing point, and you have an
रिलेटिवली वेरी गुड फ्यूरियस अप मूव. द पॉइंट इज कि हमें ये पिकअप करना है. अगर ये पिकअप कर लिया तो यू नो हाउ मच डेरिवेटिव्स कैन गिव टू यू, प्रोवाइडेड 1 घंटे पे ये 2 से 3 दिन आप इसको होल्ड कर लो. तो कॉन्सेप्ट अभी वही एसएमसी के ये 8 आवर ट्रेड आपको मिल जाएगा आराम से. इतना सा छोटा सा एसएल है, बट दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. अंडरस्टूड. तो वीसीबी का एंट्री पैटर्न भी समझ आ गया. थर्ड स्विंग हाई, ब्रेकआउट, कम डाउन, रिटेस्ट. ठीक है ना. मेनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर वीवेब के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं. मैं पर्सनली नहीं करता हूं. कई दफा कई जगह एंट्री मॉडल्स पे वीवेब के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. यहां पर मैं आपको वो बता नहीं सकता क्योंकि वो मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूं उस तरह से. सो आई कैन फ्रैंकली वेरी मच टेल यू अबाउट इट. उसको स्किप कर देता हूं. सीन. आगे बढ़ते हैं. एक्सिस बैंक. इफ आई कैन सी समथिंग और नॉट सी समथिंग, लेट्स सी. देखते हैं. All your eyes need to find now are some sort of boxes. If I'm getting some BPAs, then an OD, exhaustive mood on OD, coming down here, ये although इसने यहाँ impulsive mood आपको नहीं दिया है, एक और consolidation कर दिया है, but it gives you an furious up move back again. Just change your perspective into the box size. आपको सिर्फ rectangles ढूंढने हैं अब. All you need to find are rectangles. BPA, breakout, back to the OD levels. If I'm getting an exhaustive move directly onto the OD level, my mind says for VCP, all I have to look for is the 3 arcs, progressive arc, balance of progressive बताऊंगा कब कहाँ, but it's an progressive arc, high of the third arc, breakout and retest, breakout, retest. ठीक है. धीरे धीरे एग्जांपल्स में अगर आप बहुत ज्यादा गौर करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा, वेरी फ्रैंकली, कि when it is progressive, when it is balanced, but yeah, I'll tell you about it first. दिस इज बजाज फाइनेंस. यहाँ ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था. ये लेट्स जस्ट वॉच दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम. ना 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 हाँ. If approaching to the price is on the OD level, मैं डाउन बिलो इसको एक एच पे देख लेते हैं एक बार. दिस इज लुकिंग लाइक टू मी एज एन फॉल. ये फॉल करेगा आपका बजाज फाइनेंस. This should fall. Although it's making sort of a VCP over the supplies, बट ये मुझे फेक आउट सा लग रहा है. ये पावरफुल अपसाइड जाके नीचे गिर जाना चाहिए. चलो एनीवे, जो मैं देख रहा हूं मैं आपको बता देता हूं. अप्रोचिंग टू द प्राइस वंस अगेन क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस. ठीक है, ये तो बाद में काम आएगा, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ. दिस इज सम डिफरेंट एग्जांपल्स यार. इसको बाद में ही बताते हैं, इसको बाद में देखते हैं. इसको भी स्किप कर दो गाइस, इसको नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सप्लाई वीसीपी है और ये ब्रेकआउट और ये बैक अगेन मुझे दिख रहा है. Nothing in Bajaj Auto for now. वाह. I have an BPA, I have an OD. The price approach to my OD. ये मैंने SMC क्यों बना रखा है? Change of character, breakout structure.
ठीक है. If my price is approaching to my OD with an exhaustion move, but what I can see here is drop, base drop. So I'm having some sort of like retracement and drop. My mind right now says ask for not for an VCP but for an Wyckoff, right? अगर इस पार्ट को मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ, शायद मैंने इसलिए मार्क किया होगा इसको इस जगह, इसको लिक्विडिटी हंट और इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, so that I can pull off that lower time frame trades as well into up to the AR level. ये तो प्रॉपर इंड्यूसमेंट और सब कुछ बना ही रहा है. एनीवे, ठीक है. What will be the AR level when I see some sort of, देखो ये यहाँ तक गया, रिट्रेसमेंट दिया, बट वापस जब आया, I need to check out some rejections. It doesn't had the rejection. This was the first level, it went out, gave you some sort of retracement down. Possibly मेरा AR कंफर्म होता अगर ये वापस से मुझे यहाँ पे डाउनफॉल देता, तो नहीं दे रहा, उसको ब्रेकआउट कर दिया. सो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर AR ऑन द अपसाइड्स कि ये कुछ और हायर साइड पे जाएगा. यहाँ से मुझे 2 बार रिजेक्शन मिला, तो आई कैन एंश्योर दैट ओके, व्हाट आई नेक्स्ट हैव टू डू कि इतना ब्लॉक मुझे मिल गया, आई हैव टू लुक फॉर a line which have the maximum touches. This one. यहां से लेके अभी तक जो सीखा है उसमें ये लाइन बनाई है, और उस लाइन के हिसाब से मुझे डेली बेसिस पे मेरा स्टॉक स्क्रीनर वाला काम यहाँ पर हो रहा है. दैट व्हेन आई एम फाइंडिंग द प्राइस नियर बाय टू दिस, एनी स्टॉक विथ प्राइस नियर बाय टू दिस लेवल, आई लुक फॉर ट्रेड्स टुमारो इनटू दैट थिंग. ठीक है. इसको इग्नोर कर दो गाइस, ये मार्किंग सही नहीं है. Don't follow this. Now currently you might be feeling this I'm more inclined to VCP and less on to Wyckoff, but this has many connecting dots. That's why it is necessary for me to grounded चीजें जो ground part है उसको अपन पहले clear out कर ले. This has a very good connections in the entire Wyckoff structures. ये trade मैंने लिया होगा शायद इसलिए. Balance price area, origin demand, price approaching to my origin demand. ओके, ये तो एसएमसी से लिया हुआ ट्रेड है. 1 घंटे पे देखो आप इसको. Price approach to my origin demand, guys, gave me an up move, furious up move directly. Okay, what my point is, अगर मैं VCP, एक और बात, हाँ एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, योर VCP नॉट नेसेसरली विल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. जो ड्रॉप वाला पार्ट है ना, आपका एक आर्क यहाँ पर भी मिलता है. एंड मैं पर्सनली जिस तरह से VCP को ट्रेड करता हूँ, बहुत कम, बहुत रेयरली आई कंसिडर माई पर्सनल चॉइस व्हेन आई कंसिडर दिस एज द आर्क इटसेल्फ, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. आई ट्रेड पर्सनली दोस वंस. अब सी द कॉन्सेप्ट इज, आप आंखें कुछ भी लगा लो. यहाँ मैंने ये आपको दिखाने के लिए मार्क किया था कल, चाहे मैं इसको एंगल्फिंग सेटअप बोल दूं, दिस इज माई POI, दिस इज माई OD POI, सेट ऑफ डाउन कैंडल, सेट ऑफ अप कैंडल, 50% ऑफ दिस. चाहे आप इस बेसिस पे इस ट्रेड को ले लो, कैन बी डन, राइट. चाहे आप इसको लिक्विडिटी हंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे डिस्काउंट में ट्रेड लो, कैन बी डन. चाहे आप इसको ARC1, ARC2, ARC3, थर्ड आर्क के हेड, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे आप इसको ट्रेड ले लो. आप किसी भी फॉर्मेट पे चीजों को देख सकते हो. कहां तक ट्रेड लेना है, यहाँ मुझे बाइंग साइड लिक्विडिटी दिख रहा है, ऊपर सप्लाईज दिख रहा है, दैट विल बी द प्लेस आई विल बी लुक फॉर द ट्रेड्स एट. द आइस कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट. Bharti Airtel, I guess, yeah, there were drawings into this chart as well. And if you wish, मैं एक बार शाम को इन सब के स्क्रीनशॉट ले लूंगा और आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स एज वेल. जिन लोगों के साथ मैं अकाउंट शेयर कर रहा हूँ वो डायरेक्टली देख ही सकते हैं, एंड इफ नॉट आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स. सी गाइस, स्पेशली फॉर द VCP पर्सन, गाइस, आपको ये फॉर्मेट ढूंढने में अब बहुत मजा आएगा. व्हेन यू आर सीइंग दिस ड्रॉप एंड हाई अप, ड्रॉप एंड हाई अप, स्पेशली ड्रॉप सम सॉर्ट ऑफ बेसिस एंड हाई अप, SND की भाषा में क्या बोलते हैं, ड्रॉप बेस रैली. चाहे ड्रॉप बेस रैली हो या विदाउट बेस रैली भी हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर VCP. पॉइंट इज शुड हैपन एट अ POI. POI पे अप्रोचमेंट अगर आपको ड्रॉप बेस रैली मिल गई या ड्रॉप विदाउट बेस रैली भी मिल गई, स्टार्ट लुकिंग फॉर VCPs. जस्ट मेक श्योर
अब ये बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, कहाँ पे मैंने ये बैलेंस्ड पीओआई वीसीपी बनाया है, कहाँ पे प्रोग्रेसिव वीसीपी, आपको समझ आने लगेंगी चीजें. सेम थर्ड आर्क, हाई मार्क द हाइज, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अप. बेयर विथ मी विथ वीसीपी. मैं पर्सनली कम ही ट्रेड करता हूं इसको, बट इट हैज वेरी गुड कनेक्शन टू वाइकॉफ. दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट. मैंने कुछ एग्जांपल बजाज फाइनेंस में हम नोट किया है, हमने बात कर ली शायद. एशियन पेंट्स, आई गेस एशियन पेंट हमने बात कर ली. एशियन पेंट आई रिमेम्बर कुछ था उसमें अच्छा सा. हाँ, बात कर ही ली हमने एशियन पेंट्स. बजाज ऑटो. ना 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 आई गेस नॉट. कुछ नहीं है. आई गेस यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल. बैंक निफ्टी गाइज. बैंक निफ्टी बहुत बार होता है वीसीपी. यू विल फाइंड इट quite a lot many times. Quite a lot many times you'll find this. All you have to do is to look for a generic POI. यहाँ पे सिर्फ आप POI देखो, उस POI पे अप्रोचमेंट देखो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर VCPs. यू विल फाइंड वेरी 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 गुड ट्रेड्स. बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको मिलने लगेंगे. If I only have to say this as my breaker block, right? POIs can be anything, just a point of interest. If I'm looking at it, just look for the VCP's pattern. इस केस में ये प्रोग्रेसिव VCP है एंड रिटेल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट. माय पॉइंट इज, यहां तक आपको तकलीफ होगी चीजों को देखने में, विच मीन्स ये रिट्रेसमेंट बेयर आपको करने पड़ेंगे. बट अगर प्रिसाइज एंट्री थर्ड आर्क के हाई पे आप लेने लग गए, आप इस मूव को एंजॉय कर सकते हो. यू कैन एंजॉय दिस मूव्स. Progressive VCP is most in the many of the cases. इसको हटा देता हूँ. इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी देखे थे मैंने पिछली बार. बैंक निफ्टी बहुत बार होता है, बहुत बार होता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुशील जी. ब्रेकर, वेट फॉर इट, वेट फॉर VCP first, second, third arc, high of third arc. Wait for the breakout, retest and enjoy a good move on intraday levels only. People trading Bank Nifty, अगर आप SMC छोड़ के VCP स्पीड ट्रेड करने लगोगे 5 मिनट 3 मिनट पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, दोनों के अंदर. बिकॉज बहुत एक्सटेंसिवली इंट्राडे पे ही 5 मिनट पे VCP चलता है बैंक निफ्टी में. Basics are running down. In the rundown itself, if I'm having some sort of consolidation as a BPA area, OD, as on the price approach, OD, ये 1 मिनट पे होगा, 5 मिनट पे नहीं है, 1 मिनट 3 मिनट पे है. You'll find it. My point is this one. Third arc, breakout, retest and enjoy this move. थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहीं पे देख लेना. ये यहाँ पे बैलेंस्ड VCP है और यहाँ पे प्रोग्रेसिव VCP है. थोड़ा सा अगर नजर मारना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा. बताऊंगा कुछ एक सेशंस के बाद में, बट द पीपल हु वांट टू ड्रिल इट डाउन, दे विल बी नोइंग.
ये जानना जरूरी इसलिए बिकॉज हाइंडसाइट पे अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ आ गया ना कि बैलेंस वीसीपी और प्रोग्रेसिव वीसीपी कहां पर है, तो यू वुड नॉट हैव फोमोज इन दिस हायर हाई फॉर्मेशन, बिकॉज प्रोग्रेसिव वीसीपी हायर हाई फॉर्म करता जाएगा. सो यू वुड नॉट वरी अबाउट थिंग्स ऑफ मिसिंग आउट. स्टिल आपको पता होगा कि मेरा ट्रेड तो थर्ड आर्क के बाद ही है, and it will have relatively good moves as well. So these are a couple of examples. Balance price area, coming back to the price, ये हिंट आपको यहाँ मिल जाना चाहिए कि जो मैंने बोला था, कुछ केसेस के अंदर जो अप्रोचमेंट है वो भी एक पार्ट ऑफ आर्क ही रहता है, एंड देन यू फाइंड अ प्रोग्रेसिव हाइक्स एंड यू लुक फॉर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट. Yes. So people trading Bank Nifty 5 minutes, start looking for VCPs. बैलेंस एरिया ओडी अप्रोच होगा, उसके बाद वीसीपी. ठीक है. स्टॉक्स के अंदर बैलेंस एरिया अप्रोच होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली ढूंढना 1H और 1D पे. उसके बाद जैसे ओडी पे प्राइस आ जाता है, एलटीएफ पे पहले उसको स्कैल्प आउट कर लेना एआर लेवल तक, मतलब एआर लेवल जो कि नेक्स्ट सप्लाई आपको मिल जाए वहां तक. एआर कंफर्मेशन होने देना कि वहां से डबल रिएक्शंस मिल जाए. जैसे रिजेक्शंस मिल जाए, जैसे ड्यूल रिजेक्शंस मिल गए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना रिटेल बुद्धि के हिसाब से, मैक्सिमम टचेस के हिसाब से, और उस पार्ट को, उस लाइन को एज एन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन यूज करने लग जाना. आज संडे बैठ के निफ्टी 200 पे ये काम कर लो ऑन 1H. एक बार कर लोगे, हर दिन 2-3 चार्ट, 2-4-5 चार्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एआर लेवल पे या फिर नीचे एससी लेवल पे पड़े मिलेंगे आपको, एंड नेक्स्ट डे यू कैन यूज देम एज योर स्क्रीनर्स. राइट. नहीं, फ्रीज नहीं हुआ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ प्रकाश, इसलिए आई एम डूइंग नथिंग, दैट्स व्हाई इट्स फ्रीज. लेट्स सी कुछ और एग्जांपल मुझे शायद याद हैं. हीरो मोटो, आई डिड समथिंग इन हीरो मोटो. I'll make sure, guys. I'll send you this charts ना by the end. अभी तो स्टेशन खत्म करते हैं. I'll leave for Gurgaon, but by night I'll make sure I'll do this. I'm also speaking less, Anjani. If I don't know if that's the issue. नहीं है ना. And also trust me, I'll have this session furiously. अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा because यहाँ ब्रेक नहीं लगना चाहिए. So I'll try my level best that every Sunday I do this. So next 3-4 Sundays only will cover this part. इस संडे से नेक्स्ट संडे तक आपको 2 ही काम करने हैं. बहुत अच्छा होगा मेहनत करके अगर आज के आज ही कर लो, तो स्टॉक्स के अंदर निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के अंदर आप अपने एआर लेवल मार्क्स कर लेना. और नेसेसरी नहीं है, मतलब ये पूरा प्रोसेस, कोई प्राइस ढूंढ लेना, रीसेंट बीपीए क्या है, रीसेंट ओडी क्या है, नहीं मिल रहा है प्राइस यहाँ कहीं है तो वेट कर लो, कोई बात नहीं, बट बीपीए और ओडी मार्क करके छोड़ दो. और उसके बाद आपको रिएक्शंस दिख रहे हैं तो उस पे एआर और एससी, सेलिंग क्लाइमैक्स और एआर मार्क करके छोड़ दो. तो प्राइसेस आपको जब भी वहां मिलेंगे, इवन वो चाहे 4 महीने बाद भी आए, गाइज हर एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में. इस लेवल पे अगर वो एआर लेवल था, कुछ ना कुछ मनी, बिग मनी इन्वॉल्व रहा होगा. वो 4 महीने पास भी अगर उस पॉइंट पे क्लोज करता है तो आपको ट्रेड देगा अगले दिन. We don't have to take volume into consideration. People do. That's why I said VCP का, जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी का मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, मैं वॉल्यूम से कोसों दूर रहता हूँ. आई नेवर एंटिसिपेट वॉल्यूम बिकॉज if it is onto the chart, if the money is involved, volume will come. If it is onto the chart, अब मैं आपको जैसे बताऊं, if this is, sorry, I'll tell you something. Why I don't need volumes is if the structures is telling me big money is involved. 12 तारीख यहाँ है ना, open down and went up. अब आप भले यहाँ वीवैप लगा लो, ये आपको मोस्ट केसेस में वीवैप के ऊपर ही मिलेगा. ये वीवैप भी बड़ा कचरा कर दिया है ट्रेडिंग में ने. देख लो, ये मोस्ट केसेस वीसीपी आपकी वीवैप के ऊपर ही जाएंगी, चाहे आप लगाओ या मत लगाओ. टेक इट और डोंट टेक इट, मोस्ट केसेस दिस वीसीपी विल फॉर्म above, just above the VWAP levels only. Most and the many of the cases. So
इफ यू आर नोइंग अबाउट स्ट्रक्चर, जस्ट टू नॉट टू ओवर कॉम्प्लिकेट, मैं इसलिए वॉल्यूम्स कभी मेरे किसी चार्ट में कभी भी वॉल्यूम्स नहीं होता, मैं देखता ही नहीं हूँ वॉल्यूम्स को, नॉट नॉट नेसेसरी। वीसीपीज आपको वीवैप्स के ऊपर ही मिलेंगे, देख लो, कोई भी चार्ट ओपन कर लेना। Because if I can know the POI, if I can know the schematic, if I know how the formation are happening, I know it will happen. ये breakout retest देख लो, it will only happen above VWAP, and hence I don't need the volumes, neither the bars nor the VWAP also. So एक unnecessary चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वंडर करना चाहो कि ये ईएमए वाला काम क्यों कर रखा है, तो ये उस वीसीपी में बताऊंगा जो कि सप्लाई ब्रेक करती है। He'll tell about that VCP when the supply is broken, जो actual मार्क मिनेविनी का कॉन्सेप्ट है, एंड हिज रियल ट्रेडिंग स्टाइल जिससे वो ट्रेड करते हैं। सो अगेन नॉट यूजिंग द वॉल्यूम्स, बट मैं ईएमएस वीसीपी ऑफ सप्लाई ब्रेकिंग में ईएमएस जरूर यूज कर लेता हूँ। एंड वेरी फ्रेंकली, सौ बात की एक बात बताऊँ, मैं ये सब बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ इन रियल लाइफ ऑल्सो, जस्ट ऑन डेली एज वेल, मतलब मैं 1 आवर पे भी नहीं, डेली पे मुझे मिलता है। सो फॉर माई स्विंग्स आई यूज दिस, बट वेरी फ्रेंकली आई पर्सनली ट्रेड इट लेस। एंड फॉरेक्स के अंदर इसके एप्लीकेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं, और फॉरेक्स में मेरा कंप्लीट इंक्लिनेशन अभी कुछ महीने से फॉरेक्स पे ही है, और फॉरेक्स में मैं कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग अलग ही यूज करता हूँ। तो प्रैक्टिकली मेरे 20 चार्ट्स या 20 ट्रेड से एक किसी ट्रेड में आपको ये फॉर्मेशन मिलेगा पर्सनली, जो मैं कर रहा हूँ। तो Muthoot or Maruti, something was there in this chart as well. I'm not sure if there's some internet issue or there, but yeah. Anyway, guys, from my side, ये पहला सेशन मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ वीसीपीस का, बता रहा हूँ उसके बारे में। वाइकॉफ्स की सिर्फ 3 इनिशियल बात की है, प्रीलिमिनरी सप्लाई, ऑटोमेटिक रैली, एससी एंड सेलिंग क्लाइमैक्स। यूजफुलनेस क्या है इसमें, आपको ट्रेड ढूंढने में अगले दिन के लिए, इंट्राडे के लिए स्क्रीनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीपीए, ओडी और एआर मार्क करने लग गए तो। निफ्टी 200 पे काम कर लेना। वेरी फ्रैंकली, एक बढ़िया सी पिज्जा पार्टी दूंगा उस एक पहले बंदे को जिसने मुझे निफ्टी 200 में करके दे दिया, तो या निफ्टी 200 मुझे पता नहीं, निफ्टी 100 में भी कर दिया तो चलेगा। एनीवन हु सेंड्स मी 100 चार्ट्स, निफ्टी 100 एग्जैक्टली, बीपीए, ओडी और एआर, वन पिज्जा पार्टी इज डेफिनेटली अ शॉट फ्रॉम माय साइड, पक्का से, और बड़ा वाला एकदम लार्ज साइज का। तुम खिलाओ नहीं खिलाओ, मेरी तरफ से पक्का है 100 चार्ट्स एटलीस्ट। जरूरी नहीं है यार आपको मिले, मतलब उस पॉइंट पे हो, लेकिन ये 3 चीजें कहीं पर भी बैक टेस्ट में रही और आगे आने वाले समय में मिल रही है तो आपको वो करना है। निफ्टी 100 एटलीस्ट गाइस, सो आपको खुद को झंझट छूट जाएगी इससे। दूसरी चीज, रिएक्शंस, अगर ओडी पे अप्रोचमेंट ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के साथ है, एंटीसिपेट वाइकऑफ। डायरेक्ट ड्रॉप है, एंटीसिपेट वीसीपी। इफ इट इज वीसीपी, आपको ड्रॉप बेस रैली भी मिलने लगेगा। अगर ड्रॉप बेस रैली वाला पार्ट भी मिल रहा है, टेक द डाउनफॉल आर्क एज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वीसीपी। थर्ड आर्क, हाई ब्रेक एंड रीटेस्ट इज योर एंट्री मॉडल। सर रूल्स टू ड्रॉ आर्क ऑफ वीसी, देयर इज नो रूल्स, दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ओम प्रकाश, आपको सिर्फ चीजें दिखेंगी अपने आप। फिलहाल मैं आपको इसके लिए कोई रूल नहीं बता रहा हूं, कोई रूल नहीं है। यू विल ओनली फाइंड सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। जनरल रूल, द रिट्रेसमेंट, द आर्क विल बी स्मॉलर इन साइज। सबसे पहला आर्क सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा दूसरा, उससे छोटा तीसरा। ये जो आर्क की लेंथ आपको दिख रही है ना, ये छोटी मिलेगी बस। दिस आर्क लेंथ, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, बिगर स्मॉल स्मॉलेस्ट, इस तरह से। सो दैट इज द रूल, वन रूल यू कैन फॉलो। और इसमें ये हाइंडसाइट भी नहीं है, आपको लग रहा होगा इट्स ऑन हाइंडसाइट, बिकॉज सपोजिटली ये थर्ड आर्क आपने मार्क किया, आपको कुछ करना नहीं ना। ऑल यू व्हाट यू डू वाज टू मार्क ऑन दिस हाई एंड सेट आइडियली wait for breakout and retest. Once it's breakout, retested once again, this is the only point you're looking for a trade right now. And retest पे एसएमसी मत अप्लाई करो, डायरेक्ट एंट्री मार दो रिटेस्ट पे। यहाँ पे स्विंग लो के नीचे एसएल डालो और ऊपर जाने दो प्राइस को। When it breaks out, comes back, इस पॉइंट ऑफ लाइन पे एंट्री मार दो आराम से, स्विंग के नीचे एसएल डालो, मस्ती से चलने दो ट्रेड को। हाँ हाँ, ये जो पिज्जा खा रहा है ना बंदा, ऐसा वाला ही।
ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट संडे आई विल कनेक्ट द डॉट में आपका। और हाँ, एक और भी था, एक और कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। द वन हु कैन, मैंने हिंट आपको इस वीडियो में दे दिया है इस बारे में। द वन हु कैन गिव मी द डिफरेंशिएशन ऑफ बैलेंस्ड वीसीपी एंड प्रोग्रेसिव वीसीपी, कब कौन सा होता है, विद द रीजन और 10 चार्ट एग्जांपल, मतलब 10 चार्ट बैलेंस वीसीपी के, 10 चार्ट प्रोग्रेसिव वीसीपी के, स्टेटिंग की हाँ सर देखो इस कारण से इस सिचुएशन में ये होता है। जो बंदा ये भी बता देगा, अनदर वन पिज्जा फॉर मी। सो ये दो तो कॉन्टेस्ट हो गए हमारे, ये हमारा इस हफ्ते का होमवर्क हो गया। और कृपया करके निफ्टी 200 पे मेहनत कर लो, निफ्टी 100 200 में मेहनत कर लो, मजा आएगा काम करने में। मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ सो दैट बाकी बातें कर सके।